अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ गुजरात एज अ फॉरेनर इन इंडिया व्लॉग। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Gujarat is a state that's supposed to be incredibly rich in culture, heritage, arts and crafts, and natural beauty. But what's the first impression of Gujarat? In this video, I'm flying to Ahmedabad and discovering the first few things about an Indian state I've never visited before. Let's see what first impression Gujarat will leave on me and you. Hi, my name is Ivana and I've been living in India now for 3.5 years. I live in Bengaluru, have traveled all over India, but I've never been in Gujarat. That's why I'm super early at the airport. I have an hour to just hang around here. But I am so curious to learn what Gujarat is all about. So if you want to know everything on how to go to Gujarat, how to travel around Gujarat, what is there to see in Gujarat, where to stay in Gujarat, stay tuned. Because in this gorgeous Gujarat series, I'm going to share everything with you. This is only episode 1 where I give an introduction with the first impressions. If you'd like to see the whole series, make sure you're subscribed so you'll get a notification whenever the next episodes are uploaded. Ahmedabad, Gujarat, guys. Actually, it rained before and it is quite gloomy. It is 20 degrees. I did not expect that. I just kept seeing 30 degrees, 32 degrees on the weather app, and it's actually quite chilly. So be prepared for that. Going to get luggage and we're going to the hotel. And this is where the first impressions really begin because wow, Ahmedabad airport is amazing. As a Bangalorean, I'm quite spoiled in terms of airport quality and hence I'm extremely pleasantly surprised with the look and facilities at Ahmedabad airport. There's lots of decorations, an extremely large washroom, even nap pods, and the overall look is just extremely spacious and well thought out. A nice airport arrival always puts me in a good mood, so I'm excited to see how logistics in Ahmedabad work and what the first impression of the ambience is like. Now, as a Bangalorean, I may be spoiled with the airport but definitely not with the roads. Usually they're a challenge to navigate in Bangalore, but Ahmedabad is a breath of fresh air. In case you didn't know, there's such a thing as road glam, which is when you encounter stunning, broad, pothole-free roads and there's just so much space driving around. Ahmedabad definitely has it and I'm imenopious, as we Dutchies would say, meaning I'm extremely content. Of course, I have to do the bed test. The bed is medium towards soft. I approve. I love that. This room is phenomenal. This hotel is phenomenal. I asked them how long have you been open. They said 3 years, and obviously during what happened with the pandemic, that was not an easy time, but oh my goodness, crazy beautiful view actually, with like so much space. And the room looks so nice and there's so much space and I love the bathroom. Love. Gujarat, what is this? I mean, look at this cute sitting corner. The 3 things that I know about Gujarati people. First of all, they're very good in business and handling money. Then the second thing that I know is that they are the sweetest, kindest foodies who will feed you to death. One of my closest friends here in India, Kinjo, is a Gujarati, and I keep retelling the story about how her family saved my dad and me and got us on a train ride and then proceeded to feed us to death. So Gujaratis have a very special place in my heart. And the third thing that I know is that Gujaratis are loud, which is a good thing because I am loud too. I am loving this place. I think Gujarat and me are going to be very good friends. Very soon, we're transported to the official inauguration of the All India Influencers Meet 2021. Upon arrival, we are immediately showered with a feast of colors and traditional Gujarati attire. Inside, the hall is massive and I get to meet so many of my influencer friends which I haven't seen in a long time. What a fabulous event, and it's about to get even more fabulous. After an extremely warm welcome by Gujarat tourism officials, we're treated to a spectacular whirlwind of traditional
Of course, the food was also fabulous, but that deserves a whole episode on its own. First impressions of Gujarat. First of all, it is massive. There are so many cultural, historical places to see, and we are going to experience all of that over the course of the next 6 days. That is going to be a separate video. Second impression, Gujaratis know how to have an amazing time. The food at the inauguration was delicious. That's also going to be a separate video, Gujarati food, because I have been waiting for that for way too long and it deserves a separate video on its own. But then also the dances were so much fun, and also the traditional attire, the dress that the girls are wearing, which I think is called Chania Choli. Gorgeous, absolutely stunning. I need to either buy one of those or rent one of those because they're just too beautiful. And then also the dances, I think the first one was a mix between Kathak and Garba. Then the second one was a Dandiya Ras. And the third one was a tribal dance. All completely different dances, but full of energy and so much fun. If you look at the faces of the dancers, I literally feel like joining them. This is what I need in my life. Gujaratis having fun. Traditional dances, traditional attire, love it. This hotel, absolutely amazing. Ahmedabad, absolutely amazing. We're going to be coming back here, but tomorrow our first stop is going to be the tent city of Dordo because we are visiting Ran of Kutch, which is something that I've been waiting for, I think, ever since I came to India for the first time, or ever since I started researching beautiful places in India, because Ran of Kutch, I'll just put some pictures here so you know what to expect. If you enjoyed this video and you feel like more people should know how fun Gujarat actually is, make sure to share this video. Also make sure to like it. Comment down below what you think of Gujarat or what I should try in Gujarat, because obviously I want to know that. Also, you can consider subscribing to my channel and joining almost 250,000 other subscribers. It's free and you'll get a notification whenever I upload a new video, a new episode about Gujarat. For now, thank you so much for watching and I will see you next time. Bye. अच्छा यार, गुजरात के बारे में उन्होंने बहुत जो है फर्स्ट इम्प्रेशन में डिटेल के साथ बता दिया। हमारे लिए तो काफ़ी जो है वो डिटेल के साथ ही था, क्योंकि गुजरात के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जानते। हमारे यहाँ पे गुजरात है बट वो स्टेट नहीं है, आपके तो यहाँ पे स्टेट गुजरात है। हमारे यहाँ एक छोटी सिटी है गुजरात, उसका नाम है, और यहाँ वहाँ के लोग जो है वो गुजरांवाला गए थे, गुजरात का भी चक्कर नहीं लगा, तो आइडिया नहीं है कि गुजरात में जो है वो कम्युनिटी कैसी है। एज़ यूजुअल मुसलमान होगी, लेकिन पिछले दिनों सुना था कि गुजरात में हिंदू कम्युनिटी जो है वो रहती है, मंदिर वगैरह हैं, तो सियालकोट वगैरह वाली साइड पे, तो वो भी जब जाएंगे तभी पता चलेगा, या फिर गूगल वगैरह करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन जो वहाँ जाकर देखना होता है वो कुछ और होता है, और गूगल वगैरह पे करना कुछ और होता है, क्योंकि बाज़ डिटेल जो है वो बहुत पुरानी होती है, या फिर बताया ही नहीं गया होता कि इधर क्या है और क्या नहीं है। वैसे तो बात होती रहती है अक्सर, तो गुजरात के हवाले से अभी मेरे माइंड में आ गया तो हिंदू कम्युनिटी की तो मंदिर तो हमारे यहाँ पे एक सिटी, करीब सिटी है, उधर भी है, बट उधर का कंफर्म नहीं है हमें 100% कि कोई एक आध घर है हिंदू रहता है या सारे यहाँ से चले गए थे। वो वहाँ पे जाकर पता चलेगा। उसके जो है गिरदोनवा में जो है शॉप्स हैं, जो कि मेरा ख्याल है रेंट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, तो उसको पता नहीं संभालने वाला भी अभी कोई है या नहीं है, हमें नहीं पता। वो भी जाकर पता करेंगे कि क्या सीन है और क्या चक्कर है। आजकल तो वैसे स्कूल से छुट्टियां हैं 5 जो है वो जनवरी तक, और हम टीचर्स, हमारा हैप्पी न्यू ईयर जो है वो हो रहा है। आप सब हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद देते हैं, वो भी मेरे जहन में आ गया। तो हमारा तो भाई हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छी तरह हो रहा है। जो घर के जितने भी काम थे, जितने भी थे, वो सारे के सारे उन्होंने पूरे साल के कह लेंगे, या गर्मियों की छुट्टियां जो है उनमें करने होते हैं, या फिर जो है वो इस तरह की कोई मौका मिल जाए सही घर वालों को, अच्छा जी अब आ गए क्या कहते हैं
ऊंट पहाड़ के नीचे या कुछ इस तरह की कोई कहावत है, तो वो बात होती है। तो फिर करने पड़ते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से फिर दिन चढ़ता है, कोई नया काम, इस तरह का सीन चलते रहते हैं। तो अब बारी आती है जी गुजरात के बारे में। तो गुजरात वाकई बहुत ब्यूटीफुल जो है वो स्टेट है, और उसकी सिटी जो दिखाई है वो भी ज़बरदस्त। एयरपोर्ट का जो सीन था वो भी बहुत अच्छा था। होटलिंग का जो है वो स्मार्ट सिटी का जो सीन था, वो भी जो एक्सपीरियंस उनका रहा, वीडियो जो बना रही थी तो अच्छा रहा होटलिंग एक्सपीरियंस उनका। उसके अलावा जो रेट था होटल का वो भी मेरे ख्याल से मुनासिब था बड़ा, क्योंकि 5 स्टार होटल्स जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी महंगे हैं, तो उस हिसाब से ठीक था। उसके अलावा कुछ जो है सिटी के हवाले से जो और बातें उन्होंने बताई हैं, उनमें भी जो खाने थे और बर्फी टाइप कुछ दिखा रहे थे, इस तरह का कुछ स्वीट टाइप, गुजराती स्वीट टाइप कुछ दिखा रहे थे। तो वो भी हमने सुना ही है, मतलब कभी कंफर्म नहीं है कि उनका जो है वो क्या सीन होता है। सौगात के तौर पे लोग ले जाते हैं। और ये भी सुना है कि यहाँ से गुजराती बर्फी जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में और कहाँ कहाँ, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गुजराती रहते हैं वहाँ भी ले जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मिकदार में। जो सुना है, बता रहे थे कि भाई कि एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट लेवल पे जाती है, जो क्या कहते हैं गुजराती स्वीट है, वहाँ पे स्टोर्स हैं और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे ये मिलती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो समझी जाती है किसी भी दूसरी कंट्री में। जहाँ पे यहाँ वाले गुजरात वाले की बात हुई तो पाकिस्तानी गुजरात वाले भी ज़्यादातर जो है वो यूरोप बैठे हुए हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है। जो पहले चले गए थे वो चले गए थे, जो रह गए हैं वो डंकी लगा के जाते हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में डंकी लगा के डेली बेस पे पता नहीं कितने गुजराती जो है वो पहुंच जाते हैं। अंदाज़ा इस बात से लगा लें आप कि अगर एक घर में 9 लोग रहते हैं तो 8 लोग जो हैं उनके वो ऑलमोस्ट बाहर होंगे, और एक जो है वो एक आध घर होगा। ये है गुजरात का है। तो बाहर का पैसा आने की वजह से गुजरात जो है वो काफ़ी सारा जो है, काफ़ी सारा नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड सिटी है बाकी सिटीज़ की निस्बत, क्योंकि जो भी पैसा कमाता है वो फिर आगे अपनी कंट्री में एक अच्छा सा, गुजरातियों को ये हमारे यहाँ पे है रवाज कि और कुछ बनाया ना बनाए, अच्छे वाली कोठी बनानी है, एक घर बनाना है, सब चाहे उसमें सारी ज़िंदगी का पैसा लग जाए। लेकिन आपके गुजरात वालों ने वो बताया कि अच्छे बिजनेसमैन हैं, ग्रेट बिजनेसमैन हैं, और इसके अलावा ग्रेट बिजनेस पर्सन होने के अलावा पैसे को संभाल कर रखते हैं, ना कि ऐसे ही इधर गया और उधर गया ज़ाया नहीं करते। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि पैसा जो है, क्योंकि पैसा मिलने को तो बाज़ हर बंदे को मिल जाता है, हर बंदे से मुराद यही कि कईयों को मिल जाता है पैसा ऐसे ही, लेकिन वो संभाल के नहीं रखते, वो ज़ाया कर देते हैं। और जब टाइम गुजर जाता है तो एक टाइम आता है कि उनको वो क्या कहते हैं टके टके की ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो कहते हैं कि यार वक्त वो उस वक्त बचाए होते तो आज काम तो आ जाते। तो गुजरात के अंदर मैं साथ साथ ये पूछना चाहूँगा कि कोई तारीखी मकामात भी होंगे गुजरात के, ज़ाहिर सी बात होंगे, जो ओल्ड बिल्डिंग वगैरह या कोई इस तरह के मेमोरियल या कुछ इस तरह के। सबसे ज़्यादा तो गुजरात का वो जो हमने देखा था रेलवे स्टेशन और वो सारा सीन, वो भी गुजरात का ही है जो मोदी जी ने बनवाया है। तो वो कितना वीआईपी था, तो वो तो देखने लायक है ही। देखने लायक क्या मतलब, वो तो देखना चाहिए जहाँ पे इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंस होती है। गुजरात की हिस्ट्री के मतलब अगर आप लोग हमें बता देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हिस्ट्री के मतलब नहीं बताया गया कि गुजरात की हिस्ट्री क्या है और कब से गुजरात आबाद है और किस तरह करके गुजरात की आबादी और किस तरह इसके अंदर तारीखी जो पॉपुलेशन कितनी है, और साथ साथ तारीखी मकामात हैं अगर जो पुराने बरसों से जो वो लोग जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर ये ऐसे हमारे बहुत सारे स्टेट और सिटी जो गोरों से छुड़वा कर अपने हिस्से में लेकर आए होंगे, इस तरह की अगर कोई कहानी इसके पीछे कोई इसका है, आप दिखा सकते हैं हमें इसका वेन्यू, तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, ये बात हम आपसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अब तो चलो छुट्टियां हैं, हम कुछ सर्च करते रहते हैं, गूगल वगैरह करते रहते हैं, बाकी टाइम में जो है वो आओ और जाओ, क्योंकि टाइम ऐसे ही होता है कि सुबह बंदा अगर निकलता है 7 बजे तो शाम को आता है वापस।
तो काफ़ी जो है वो सर दर्द रहता इसी है। बहाने से फिर आपको हम थोड़ा बहुत अगर कह देते हैं तो फिर हमारी आपसे सलाह हो सीखने जाती है, का, आपसे जी, सीखने का मजा ही मौका और मिल कुछ है, जाएगा क्योंकि आपसे। वो क्या कहते हैं, फिर वो कंप्यूटर से जो पूछा तो क्या पूछा, किसी भाई ने बताया तो वो बात याद याद रह रहता है। जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह ये है कि फिर वो कमेंट सेक्शन जो है, हमने जब आपसे कहा होता है फिर आप हमें बताते हैं, बेहतर बताते हैं, फिर कमेंट में जाकर हम उसे रीड करते हैं। रीड करने के बाद कोई ना कोई रिप्लाई आप लोगों को हो जाता है, और जिन दोस्तों को रिप्लाई नहीं होता वो भी माइंड ना किया करें, हम उनके सारे के सारे कमेंट रीड कर लेते हैं, और जिनके रह जाते हैं वो भी माइंड ना करें, यकीनन हम उनको भी रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।